Good morning, class 8th. So today we are to study grammar. Okay, and आज हम chapter 11 adverbs study करने वाले हैं. तो adverbs, as the name says, they add something to verb. Okay, adverb जो होते हैं, इस वर्ब का मेन फॉर्मेशन ये बताता है कि adverb किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं. बट मोर ओवर एक एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है. इफ़ देयर इज़ एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, वो उसे मॉडिफाई कर सकता है. और इफ़ देयर इज़ एन अदर एडवर्ब इन द सेंटेंस एंड इट नीड टू बी मॉडिफाइड, उसे भी वो मॉडिफाई कर सकता है. ओके, नाउ सी द एग्जांपल्स. एडवर्ब that modify the verb is John can speak French fluently. So the word fluently came for speaking. Mary is laughing loudly. Loudly is for laugh. And speak and laugh जो है वो क्या है, verbs हैं. Okay, so यहाँ पर adverb fluently and loudly modify कर रहे हैं verb को. Now see the next example. He is seriously ill. Ill is an adjective, whereas seriously is an adverb क्योंकि वो adjective को modify कर रहा है. Same in truly funny. Funny is an adjective जिससे truly adverb modify कर रहा है. Okay, now the other example, those are colored in pink. He was talking too much angrily. Okay, so this angrily is the adverb. Okay, and too much is the modifying adverb. So यहाँ पर आपको डबल एडवर्ब too much और angrily दोनों ही मिल रहे हैं. और यहाँ पर angrily को modify कर रहा है too much. कितना angry? बहुत ही ज़्यादा angry. Okay, so adverbs जो होते हैं they can modify a verb as well as they can modify adjectives and another adverb in the sentence. Okay, so adverbs जो होते हैं they are of four kinds, right? एडवर्ब ऑफ मैनर जो तरीका बताता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो आपको प्लेस बताता है, एडवर्ब ऑफ टाइम टाइम से रिलेटेड होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि काम कितनी बार हुआ है. ओके, सो एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे करेक्टली, केयरफुली. एडवर्ब ऑफ प्लेस सच एज हियर, देयर, आउटसाइड, यहाँ वहाँ बाहर. ओके, तो ये होंगे आपके एडवर्ब ऑफ place. Adverb of time like now, still, yesterday, someday. And adverb of frequency like always, monthly. Okay, now see the exercises. So exercise A मैं आपको एक करेक्ट एडवर्ब जो एडवर्बियल क्लॉज बनाने के लिए कंजंक्शन पुट ऑन करना है. सो सी दैट blank, he always did well on his English test. His parents were not surprised that he got an A. Okay, so यहाँ पर आप यूज़ करेंगे since and so on. You will fill the blanks. Now exercise B says fill in the correct adverb form. यहाँ पर आपको अपने से कुछ adverbs fill करनी है. So I have done that for you. And the next exercise also I have done for you, that is a little changed. Fill in the correct adverb form. यहाँ पर दिया हुआ था कि comparative and superlative form में भरिए, but actually they are not in such a way जिसे हम comparative या superlative form में fill कर सकें. So I have made it to give a sequence, right? तो I have marked 1 and 2. 1 means आप उसे at first रखेंगे after the sentence, then 2 मीन्स उसके बाद में रखेंगे. और जहाँ पर 3 ऑप्शन है वहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है. सो रीराइट दिस सेंटेंस एंड राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट चैप्टर is chapter 12, that is the preposition, right? So what do you think is preposition? Preposition actually वो words होते हैं जो किसी नाउन से पहले आते हैं एंड दे आर यूज टू शो द टाइम, प्लेस, मूवमेंट, राइट. और प्रीपोजिशन इन्हें यूँ ही इसीलिए कहा जाता है बिकॉज दे कम्स बिफोर अ नाउन
and shows the connection of noun that noun with another noun in the sentence, right? If I say this, I go to school with my friend, so here with जो है वो my friend के पहले आ रहा है, that is the noun, that's why it is preposition and it shows that कि friend और मैं साथ साथ स्कूल जा रहे हैं, right? So it shows, which shows the connection of the friend and I, okay? तो noun या pronoun से पहले आएंगे and सेंटेंस में किसी और नाउन एंड प्रोनाउन से वो कनेक्शन दिखाते हैं कि हाउ दे आर कनेक्टेड. नाउ सी सम एग्जांपल्स ऑफ द प्रीपोजिशन आर गिवन हियर, लाइक इट, एट, इन, ऑन. एट जो होता है और इन, ये प्लेस एंड टाइम दोनों के लिए यूज़ किया जाता है. ऑन प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है. सो एट जब हमारा एक्सटेंट यानी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 7 o'clock, 10 o'clock, एट डे ब्रेक, एट क्रिसमस, ठीक है. एट द डोर, एट द थिएटर मीन्स एक्सटेंट जब कम होगा तो एट का यूज़ करेंगे. लॉन्गर पीरियड के और बड़ी जगह होगी तो इनका यूज़ किया जाता है. ऑन जब सरफेस से जुड़ा हुआ हो या मूवमेंट है तो हम यूज़ करेंगे. डेज एंड मंथ्स के साथ में जो है हम डेज़ के साथ में ऑन का यूज़ करते हैं. डेट्स के पहले भी हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना. और जिस चीज़ के ऊपर है हम सरफेस से जुड़े हुए हैं उसके साथ भी ऑन का यूज़ करते हैं, ओके. ऑन और ऑफ, अपॉन, ये दोनों कभी कभी हमें कंफ्यूज करते हैं बिकॉज दोज लुक्स सिमिलर, ओके. ऑन यूजुअली यूज वाइल स्पीकिंग ऑफ द थिंग एट द रेस्ट. तो ऑन जो होता है तब हम यूज़ करते हैं जब रेस्टिंग पोजीशन में हो, और अपॉन जो होता है वो मूवमेंट के लिए यूज़ होता है यानी मोशन के लिए. नाउ सी इन और इनटू, सेम थिंग. जो ऑन और अपॉन के लिए अप्लाई होती है, इन रेस्टिंग पोजीशन के लिए होता है और इनटू जो होता है वो मोशन या मूवमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है. इन, विद इन, अब ये हम बात कर रहे हैं टाइम की. सो इन जब हम यूज़ करेंगे इसका मतलब अब आगे आने वाले टाइम की बात करें, और विद इन मतलब उस समय के बीच में. आफ्टर इज़ यूज्ड जब कोई चीज़ किसी समय के बाद होने वाली है, राइट. फॉर, सिंस एंड अगो, फॉर पीरियड ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, ओके. सिंस जो है वो हम यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस के साथ में जब काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अभी भी कंटिन्यू है. अगो हम फ्यूचर की पास्ट की बात करते हैं पहले, ठीक है. बिटवीन एंड अमंग दोनों का मतलब होता है बीच में, बट बिटवीन इज़ यूज्ड जब हम टू पर्सन्स टू थिंग्स की बात कर रहे हैं या टू कंडीशंस की बात कर रहे हैं. अमंग इज़ यूज्ड जब हम मोर देन टू पर्सन्स टू थिंग्स एंड टू कंडीशंस की बात कर रहे हैं. बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब होता है के बाजू से यानी बाय द साइड ऑफ, एंड बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू, उसके साथ साथ, राइट. साथ साथ मीन्स इसके अलावा, ओके. नाउ टिल, अंटिल एंड बाय, तो टिल एंड अंटिल इज़ यूज टू से व्हेन समथिंग फिनिशेस जब ख़त्म हो जाता है, ठीक है, यानी क्लोजिंग टाइम बताता है. और बाय जो है ये बताता है कि उससे आगे नहीं चलेगा, ओके. अब बाय और विद हम जो है कैरिंग एक्शन यानी कोई हमारे पास चीज़ है उसके लिए भी यूज़ करते हैं. जैसे आई गो बाय बस, ओके, एंड आई गो विद माई फ्रेंड्स, राइट. बिफोर एंड फॉर आर द नेक्स्ट preposition. So before is used in negativity and affirmative यानी affirmative negative sentences में future टाइम का कोई पॉइंट बताने के लिए यूज़ किया जा सकता है, एंड फॉर पीरियड ऑफ फ्यूचर टाइम के लिए यूज़ करते हैं. अबव एंड ओवर दोनों का मतलब होता है ऊपर, ओके. तो ये जो होते हैं अबव एंड ओवर दो बोथ कैन बी यूज्ड फॉर हायर देन जब टू थिंग्स क्लोजली एक दूसरे के पास में हो, ठीक है ना. बट ओवर का हम यूज़ करते हैं जब एक चीज़ दूसरे को कवर कर रही है, ठीक है.
एंड अबव जो होता है उसमें कवरिंग पोजीशन नहीं होती है। सिमिलरली बिलो एंड अंडर दोनों का मतलब होता है के नीचे। ओके तो बिलो अबव का अपोजिट होता है और अंडर ओवर का अपोजिट होता है। तो वी यूज़ बिलो व्हेन वन थिंग इज़ नॉट डायरेक्टली अंडर। जब डायरेक्टली अंडर नहीं है तो हम बिलो का यूज़ करेंगे, और डायरेक्टली अंडर है तो यानी नीचे है तो हम उसे अंडर का यूज़ करेंगे, राइट। अबाउट एंड ऑन आर ऑल्सो द प्रीपोजिशंस। सो यहाँ पर अबाउट एंड ऑन दोनों को कंसर्निंग या ऑन द सब्जेक्ट ऑफ के लिए यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर आपको वर्ब दिए हैं जिनके साथ आपको अबाउट ही यूज़ करना है, एंड सम वर्ब्स आर देयर जिनके साथ ऑन का यूज़ किया जा सकता है। ओके नाउ सी सम एग्जाम्पल जहाँ पर आपके प्रीपोजिशन जो हैं वर्ब का मीनिंग चेंज कर देते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। जैसे गिव अप, गिव इन, गिव आउट, तीनों का मीनिंग डिफरेंट होगा, हाउएवर वर्ब हमारे पास गिव ही है। सो गिव अप मीन्स छोड़ देना, ठीक है। गिव इन मीन्स हार जाना, एंड गिव आउट मीन्स to die or to stop. Okay, take off means उड़ना, राइट। द प्लेन टेक ऑफ एट 6 शुरू हो रही है, ठीक है, अपनी जगह से चल देगी। टेक बैक यानी वापस लेना, एंड टेक डाउन मीन्स टू राइट। ओके सो अगर आप किसी वर्ब के साथ में कोई प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं एंड इट गिव्स द स्पेशल मीनिंग देन इट विल बी कॉल्ड फ्रेजल वर्ब, राइट। So this is all about the preposition and the adverbs. Read the chapters carefully, and if you have any confusion you can call me. Do the homework means complete your work and then send it to me.